તું મારે રમત રમવી નથી. આ નયન બંધન છોડ તું મારે રમત રમવી નથી. પ્યાસો પરમ રસનો સદા શોધું પરમ રસ રૂપને. પ્યાસુ પરમ રસનો સદા શોધું પરમ રસ રૂપને. અનુભવ મને અવલો થયો એવી રમત રમવી નથી. અનુભવ મને આવલો થયો એવી રમત રમવી નથી. તું આવીને ઉત્સાહ દે કાફે કિરણ પ્રકાશના. તું આવીને ઉત્સાહ દે કાફે કિરણ પ્રકાશના. આલક્ષ્ય વિન રખડી મર્યાની રમતને રમવી નથી. આલક્ષ્ય વિન રખડી મર્યાની રમતને રમવી નથી. હે તાત તાપ અમાપ આ તપવી રહ્યા છે ત્રિવિધના. એ તાત તાપ અમાપ તપવી રહ્યા છે ત્રિવિધના. એ તાપ માહી તપી મર્યાની આ રમત રમવી નથી. તાપ માહી તપી મર્યાની આ રમત રમવી નથી. સહન કરી શકતો પ્રભુ તારા વિરહની વેદના. નથી સહન કરી શકતો પ્રભુ તારા વિરહની વેદના. હે દેવ તુજ દર્શન બિના મારે રમત રમવી નથી. હે દેવ તુજ દર્શન બિના મારે રમત રમવી નથી. નથી સમજ પડતી હે પ્રભુ કઈ જાતની આ રમત છે. નથી સમજ પડતી હે પ્રભુ કઈ જાતની આ રમત છે. ગભરાય છે ગાત્રો બધા મારે રમત રમવી નથી. ગભરાય છે ગાત્રો બધા મારે રમત રમવી નથી. હોવે રમત ઘડી બે ઘડી બહુ તો દિવસ બે ચારની. હોવે રમત ઘડી બે ઘડી બહુ તો દિવસ બે ચારની. આ તો અનંતા યુગ ગયા એવી રમત રમવી નથી. આ તો અનંતા યુગ ગયા એવી રમત રમવી નથી. ત્રિભુવનપતિ તુજ નામના થાક્યો કરી કરી સાધને.
વનપતિ તુજ નામના થાક્યો કરી સાધને સુનતા નથી કેમ દાસને આ રમતને રમવી નથી કેમ દાસને આ રમતને રમવી નથી દૂર કા પ્રભુ દોડતું મારે રમત રમવી નથી દૂર કા પ્રભુ દોડતો મારે રમત રમવી નથી આ નયન બંધન છોડતું મારે રમત રમવી નથી આ નયન બંધન છોડતું મારે રમત રમવી નથી Jai Jinendra. On behalf of all our kids, we would like to हम सब बच्चों के बिहाफ पर हमको सबको भाभी को साहिब जी को कमल भैया को और वीना माँ को हैप्पी टीचर्स डे विश करना है एंड ऑल्सो नॉट द लास्ट बट सॉरी एंड हमको हमारे वॉलेंटियर्स किड्स क्लास के वॉलेंटियर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे विश करना है फॉर ऑल द हेल्प सो ऑल ऑफ हम सब बच्चों को एक भक्ति लेना है अभी તમારા પગ ધોવાદ્યોને ગુરુરાજ તમારા મને ધોવાદ્યોને ગુરુરાજ ચરણ મને ધોવાદ્યોને ગુરુરાજ ચરણ મને ધોવાદ્યોને ગુરુરાજ હે જીતા મેં ઘણો કર્યો છે ઉપકાર હે જીતા મેં ઘણો કર્યો છે ઉપકાર તમારા પગ ધોવાદ્યો ને ગુરુરાજ ચરણ મને ધોવાદ્યો ને ગુરુરાજ કઈ વિધિ પૂજુવાલા કઈ વિધિ વંદુવાલા કઈ વિધિ પૂજુવાલા કઈ વિધિ વંદુવાલા શાસક કરું સન્માન હે જીવાલા શાસક કરું સન્માન તમારા પગ ધોવાદ્યો ને ગુરુરાજ ચરણ મને ધોવાદ્યો ને ગુરુરાજ હા પંચમ કાલે મને ગુરુવાર ભેટ્યા મારા પંચમ કાલે મને ગુરુવાર ભેટ્યા મારા ભવોના તારણ હારે જીવાલા ભવોના તારણ હાર તમારા પગ ધોવાદ્યો ને ગુરુરાજ ચરણ
1,84 યોનિમાં ભટક્યો તોય 1,84 યોનિમાં ભટક્યો તોય ક્યાંય ના આવ્યો પાર. હે જીવાલા પાર, તમારા પગ ધોવા દ્યો ને ગુરુરાજ, ચરણ મને ધોવા દ્યો ને ગુરુરાજ. હા, સદગુરુ કેરા શરણે જાતા, સદગુરુ કેરા શરણે જાતા, પંચમ ગતિ મળી જાય. હે જીવાલા પંચમ ગતિ મળી જાય, તમારા પગ ધોવા દ્યો ને ગુરુરાજ, ચરણ મને ધોવા દ્યો ને ગુરુરાજ. હા, મુક્તિપુરીના અગ્રેસર તમે, મુક્તિપુરીના અગ્રેસર તમે, સિદ્ધોના વારસદાર. હે જીવાલા સિદ્ધોના વારસદાર, તમારા પગ ધોવા દ્યો ને ગુરુરાજ, ચરણ મને ધોવા દ્યો ને ગુરુરાજ. શિવપુર કેરો સાથ તમારો વાલા, શિવપુર કેરો સાથ તમારો વાલા, લેજો સેવકની સંભાળ. જીતા લેજો સેવકની સંભાળ. હે જીતા મહેર કરો ને મહારાજ. હે જીતા મહેર કરો ને મહારાજ, તમારા પગ ધોવા દ્યો ને ગુરુરાજ, ચરણ મને ધોવા દ્યો ને ગુરુરાજ. હે જી તમે ઘણો કર્યો છે ઉપકાર. હે જી તમે ઘણો કર્યો છે ઉપકાર, તમારા પગ ધોવા દ્યો ને ગુરુરાજ, ચરણ મને ધોવા દ્યો ને ગુરુરાજ. શ્રીમદ રાજચંદ્ર 254 પત્ર ચાલે છે. कल 3 प्रकार के
मुमुक्षु की बात चली थी। आज 33 नंबर के पेज में से लेंगे भाई श्री का प्रवचन। जरा ધ્યાનથી જોઈએ તો એમના જ શબ્દોમાંથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે। कृपाणुदेव के वचन से ये बात स्पष्ट होती है कि आ लोकनी अल्पपण सुखेच्छा એ ઘણું કરીને તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થયા પહેલા હોય છે। એટલે કે મંદ દશાવાન અને મધ્યમ દશાવાન મુમુક્ષુને આ दोष હોય છે। क्या कहते हैं कृपाणुदेव के वचन में? आलोकनी अल्प सुखेच्छा। आलोक यानी विश्व के पदार्थ, इसमें सुख है ऐसा जो निश्चय है, ये ज्ञान दशा उत्पन्न होने से पहले ये रहती है अभिप्राय में, अथवा तो भाव भाषण होने के पहले रहता है। जब आत्मा का निश्चय होता है तो आत्मा का भाव भाषित होता है, और आत्मा में जो स्वसंवेदन है उसका अनुभव वेदन होता है। तो साथ साथ में आत्मा में अनंत सुख है, इसका भी भाषण होता है। ऐसी भूमिका में फिर आलोक की अल्प सुखेच्छा नहीं रहती है। सुख मेरे अंदर में है, मेरे अंदर में सुख का सागर है। सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में आत्मा में से अनंत सुख का भोगवटा कर रहे हैं। वर्तमान में अनंत सिद्ध है सिद्धालय में, और आत्मा का अनंत सुख का निरंतर भोगवटा करते हैं, और भविष्य में अनंत काल तक ये आत्मा का सुख का अनुभव करेंगे। तो आत्मा में कितना सुख है इसका हमको एक अंदाज लगाना चाहिए कि भविष्य में अनंत 24 तीर्थंकर हो जाए यहाँ, फिर भी सिद्ध परमात्मा अंदर में आत्मा में से अनंत सुख का अनुभव करते हैं। तो अंदर में कितना सुख रहेगा। ऐसा सुख मेरे अंदर में है, ये भाव भाषण के काल में ख्याल आ जाता है। तो जीव के परिणाम को नजरबंदी हो जाती है, क्या हिप्नोटाइज, क्योंकि अनादिकाल से जीव ने सुख प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किया है। आज भी अब देखो तो कितने पाप के परिणाम, मायाचार के, चोरी के, ये सब सुख प्राप्ति के लिए ही है। और ये अनादिकाल से जीव सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। चारों गति में, चारों गति के जीव सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में निरंतर रहते हैं, लेकिन अनादिकाल से आज तक सुख की एक बूंद भी अनुभव में नहीं आई है। क्या जैसे आपको भूख लगी हो और खाना न मिले तो क्या होता है, और फिर 2 दिन न मिले तो क्या होगा? क्या ऐसे अनादिकाल से जीव को सुख मिला ही नहीं है, और प्रत्येक वर्तमान में उसको सुख चाहिए। ऐसी कोई क्षण नहीं थी कि वो सुख के प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं किया उसने। अपनी अपनी समझ के अनुसार किया है, भले गलत प्रकार से किया है, लेकिन
प्रयत्न तो जरूर किया है सुख प्राप्त करने के लिए। ऐसे जीव को भाव भाषण जब होता है, आत्मा का निश्चय जब होता है, तो पता लगता है कि मैं जो सुख अनादिकाल से ढूंढ रहा हूं, वास्तविक वो तो मेरे में ही है, और मैं पर पदार्थ से सुख लेने का प्रयत्न कर रहा हूं, ये मेरा निष्फल कार्य अनादि से चल रहा था। तो जब तक तीव्र मुमुक्षुता यानी ज्ञान दशा अथवा भाव भाषण की दशा की उत्पत्ति થયા પહેલા આ લોકની અલ્પ સુખેચ્છા હોય છે। એટલે કે મંદ દશાવાન અને મધ્યમ દશાવાન મુમુક્ષુને આ દોષ હોય છે। અભિપ્રાયમાં અનુકૂળતામાં સુખ છે, ऐसा निर्णय हो गया है कि ये अमुक पदार्थ है, उसमें सुख है, ऐसा निर्णय जीव ने किया है। दूसरे जीव ने दूसरे पदार्थ में सुख का निश्चय किया है। ऐसे सबने अपनी कल्पना से पर पदार्थ में सुख है ऐसा निश्चय किया है, और ये अभिप्राय हो गया है जीव का। यानी कि विचार करे बिना जब जब जीव को दुख होता है तो वो सुख प्राप्त करने के लिए पर पदार्थ के तरफ ही जाता है। समझ में आया? ये अभिप्राय बन गया है कि जब जब आपको कोई भी तकलीफ हो, दुख हो, तो आप क्या करते हैं कि पर पदार्थ की तरफ झुकते हैं सुख लेने के लिए। ऐसा जीव का जो अभिप्राय है, એટલે કે અભિપ્રાયમાં અનુકૂળતામાં સુખ છે, अनुकूल और प्रतिकूल। अपनी इच्छा के अनुरूप जो कार्य हो वो अनुकूल होता है। जैसे कि पैसा, अभी एसी, हाँ, ये सब अनुकूलता है। गाड़ी, घर, इसमें सुख है ऐसी मान्यता है। ये अभिप्राय पूर्वक मान्यता है जीव की। ક્યાંય પણ મારું સુખ બહાર છે, મારું સુખ આત્મામાં છે, ऐसा हुआ नहीं है निश्चय। એ પ્રકારનો અભિપ્રાય રહી જાય છે। ભલે આચારની અંદર વૈરાગ્ય દેખાય, कोई जीव वैराग्य में भी आता है, बाह्य त्याग में भी आता है, सदाचार उसके होते हैं। सदाचरण माने सामान्य जीवन व्यतीत करना, सिंपल लाइफस्टाइल, क्या जितना चाहिए उतना, ज़्यादा लेना नहीं, ऐसा सदाचार देखाय तो पण अभिप्रायनी अंदर आ दोष रही जाए छे। लेकिन अंतर में पर पदार्थ में सुख है ऐसा जो अभिप्राय है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। તેથી તેને અલ્પ સુખેચ્છા કહી છે। તીવ્ર સુખેચ્છા વાળાની તો અહીંયા ગણતરી જ નથી। जो सामान्य अज्ञानी जीव है संसार में, जो पर पदार्थ में तीव्र सुख की इच्छा रखते हैं, उनकी तो यहाँ बात नहीं। यहाँ तो मुमुक्षु की बात है, जिसको विचार में तो आया है कि पर पदार्थ में तो सुख नहीं है, सुख तो आत्मा में है, सिर्फ विचार में आया है, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई अंदर में। जेने पंचेन्द्रियना विषयों के अनुकूलता तीव्र सुखनी इच्छा अथवा तीव्र रसवाड़ा सुखना परिणाम अनादिना अभिप्रायपूर्वक चालू है, एने तो आ भूमिकानो विषय लागू पड़तो नहीं। 5 इंद्रिय
ये जो है रंग देखना, सुंदर आकार और म्यूजिक, हाँ, ये एक इंद्री का विषय है। स्वादिष्ट खाना खाना, ये भी एक इंद्री का विषय है। सुगंधी है, सेंट, वो क्या रहते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, परफ्यूम, ये भी एक इंद्री का विषय है। और सुवाड़ू लीसू इन्हें मलमल का, हाँ, सॉफ्ट होता है ना, एकदम अच्छा लगता है, एसी फुल और फिर मलमल का, हाँ? ये स्पर्श इंद्री का विषय है। ऐसे 5 इंद्री ना विषय में के अनुकूलता में संपत्ति, पैसा, घर बार आदि में तीव्र सुखनी इच्छा है, तीव्र रसना सुख वाला परिणाम है। वो प्रवृत्ति के काल में उनको बहुत रस आता है, बहुत हर्षित होता है अंदर में। जब एसी की पवन की हवा आती है, हाँ, और अपने को लगती है तो ऐसा लगता है बहुत मजा आ रहा है, हाँ? तीव्र रस, समझ में आ रहा है कि नहीं? खाने के लिए स्वादिष्ट कोई चीज हो तो एम थे हा गुरुदेव के ने पत्थर वेलिया अने हाँ मजा આવી જાય अंदर में। ऐसा जो भाव जब होता है तभी तीव्र रस के परिणाम जीव को होते हैं। और वो काल में बहुत जोरदार कर्म बंधन होता है उसको। रस जितना है उतना बंधन होता है। रस तीव्र हो, ऐसा जो राग का भाव है उसमें ज्यादा चिकास है कि वो कर्म के परमाणु के जत्थे को ले लेता है। रागादि परिणाम में चिकास है, जैसे तेल में चिकास होती है ना, ऑयल का तो आप लोग धंधा करते हैं ना। ऑयल में तो क्या है, ऑयल लगा दिया तो क्या होता है कि धूल है ये चिपक जाती है, बराबर है कि नहीं? हाँ, ऐसे रागादि परिणाम में चिकास है क्या? इसके कारण से कर्म की धूल चोट जाती है उसमें। और तीव्र रस वाले जो परिणाम है उसमें तो माउंटेन ऑफ कर्म आकर छोड़ जाता है। कितना? एक माउंटेन में कितने परमाणु है, उतने परमाणु, अनंत परमाणु आकर जीव में चिपक जाते हैं, जिसको बंधन कहने में आता है। इसको कर्म बंधन कहने में आता है। कर्म बंधन कैसे होता है? अपने राग से होता है, अपने द्वेष से होता है और अज्ञान से होता है। तो अगर मुमुक्षु प्रयास में, प्रयोग में रहता है तो उसको ऐसा तीव्र रस वाले परिणाम नहीं होते हैं। ये तो पुद्गल पदार्थ है, इसमें तो सुख कैसे रहेगा? ये तो सुख, इसमें सुख से खाली है। ये तो मेरी कल्पना है कि एसी की हवा आने पर मुझे सुख मिल रहा है, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ क्या? ऐसा जो प्रयास में रहता है तो उसका रस अपने आप कम हो जाता है और बंधन परमाणु के भी उसको कम होता है। अनादिना अभिप्राय पूर्वक चाले छे। तो ये जो वर्तमान में अपना रस है और वो अभिप्राय पूर्वक रस है। अभिप्राय माने निश्चय है हमारा कि एसी की हवा में सुख है ही क्या? और ये निश्चय हमारा अनादिकाल से चल रहा है, ये बहु में नहीं है। अनादिकाल से पर पदार्थ में सुख है ऐसा है। એને તો આ ભૂમિકાનો વિષય લાગુ પડતો નથી, પણ તીવ્ર મુમુક્ષુતાની ઉત્પત્તિ થવાની તૈયારી હોય
जो मुमुक्षु को आत्मज्ञान होने की तैयारी हो या भाववासन होने की तैयारी हो અને મધ્યમ દશામાં આવેલો જીવ હોય એને પણ આ દોષની સંભવિતતા રહેલી છે. जब तक भाववासन नहीं होता है तो इसको अंतर में इस प्रकार का दोष रहता है. તેમ હોવાના કારણો એવી સુખેચ્છા રહેવાનું કારણ એ છે કે તે સત છે, નિસંગપણે તે સત છે. તે એટલે આત્મા એટલે હું એક કાયમ રહેવાવાળી એક વસ્તુ છું. મારામાં અનંત ગુણ વસે છે. 3 કાળના સમયથી પણ अधिक મારામાં ગુણ છે. ऐसा स्वयं सत है, ये दृढ़ नहीं हुआ है. इसके कारण से आलोकनी अल्प सुखेच्छा जीव को रहती है. सतનો अर्थ કર્યો છે કૃપાળુદેવે. સત એટલે માત્ર અહીં સત્તા એટલો अर्थ हमारे करवो नहीं. वैसे सत अर्थ का मतलब ये है कि कोई हयाती वाली चीज को सत कहते हैं. अस्तित्व जिनका है उनको भी सत कहते हैं. लेकिन उतना अर्थ नहीं है यहाँ, उससे आगे भी कहना है. એટલો अर्थ हमारे करवो नहीं, એટલો भाव केवो नहीं, अथवा एम कहीने सत एटले परम आनंद रूप ज छू एम पण निश्चय नहीं. मैं ही परम आनंद रूप हूँ, मेरे में ही अनंत आनंद भरा है, ऐसा विचार में आया है जिनवाणी के द्वारा. समझ में भी न्याय से आया हो. न्याय क्या लिया कि देखो ये पुद्गल पदार्थ है या एसी है या मिठाई है या सोनू है या चांदी है या हीरा है, तो इसमें सुख नाम का कोई गुण ही नहीं है. ऐसा न्याय से तर्क से नक्की किया. समझ में आया कि नहीं? वो हीरा है तो मनुष्य को दो तो उसको उसमें सुख लगता है. मनुष्य जीव को दो तो क्या लगेगा? उसमें सुख है. उसको पहनने का भाव, दिखाने का भाव, संग्रह करने का भाव, ये सब होता है ना कि नहीं? गाय भैंस के पास हीरा रखो तो क्या होता है? वो भी जीव है कि नहीं? हाँ? गाय भैंस है ना, उसके पास 1 करोड़ का हीरा रखो और एक घास का पूड़ा रख दो बाजू में, हाँ? तो वो क्या करेंगे? पागल है ना. उसको कल्पना नहीं है उसमें, हीरे में. और मनुष्य को ये कल्पना है. देखो, वो भी जीव है, हम भी जीव है. अगर उसमें सुख होता तो गाय भी वो पूड़े के पास नहीं जाती ना. समझ में आया? वो तो मुंह फेर कर कहाँ पूड़ा है वहाँ देखती है. 1 सेकंड भी उसको वहाँ रुकने का होता नहीं है. तो हम भूतकाल में जब गाय थे तो हमको हीरे की तभी कोई कीमत नहीं थी. और अभी मनुष्य में आ गए तो हमको कीमत हो गई. वाह वाह, लाओ लाओ लाओ. हाँ? और वो हीरा की जवेरात आदि के लिए हम कितना पाप का परिणाम अंदर में करते, कितना मायाचार करते. हाँ? उसको प्राप्त करने के लिए. और उसमें कितना कर्म बंधन होता है. और उसको संग्रह करने का लोभ का भाव हम कितना करते हैं. तो इसे लोभ के परिणाम में कितना हमको कर्म बंधन होता है. तो ये सब प्रॉब्लम और दुख का कारण क्या है? खाली कल्पना.
एक कल्पना के कारण से जीव कितना दुख भोगता है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अगर उसको हीरे में कल्पना नहीं है सुख की, तो ये सब प्रवृत्ति उसकी बंद हो जाती है, उसको प्राप्त करने की, उसको दूसरे को दिखाने की, उसकी चर्चा करने की कि देखो ये तो ब्लू जाय वाला है, बेल्जियम है, और वो पिंक वाला है, वो येलो है, कितना प्रकार है उसमें भी, इतना कैरेट है, इतना प्राइस है, अभी ये डबल हो गया, वो आधा हो गया, ये सब कितना डिस्कशन होता है। एक जैसे कोई धूल के लिए डिस्कशन दो आदमी करे तो क्या करेंगे, तुम्हारे गल की धूल कैसी है क्या कलर की है ये भी एक धूल ही है, हीरा ये एक धूल ही है, लेकिन हमने कल्पना की है कि ये सुख, इसमें से हमको सुख मिलता है, इससे हमको फायदा होता है, इसको तो हमको लॉकर के अंदर में रखना चाहिए, और बाहर में पत्थर पड़ा है उसको लॉकर में रख दे, नहीं, हीरे का पत्थर रहेगा तो लॉकर में रखता है। समझ में आया? और इसकी विचारणा, इसकी चर्चा, कोई रात को 2 बजे आवाज आया तो सोचता है कि वो हीरा तो नहीं गया, हाँ, महंगा हो तो, 1 करोड़ का हो तो क्या होगा, तो उसको अंदर में चिंता हो जाती है। जिसके पास नहीं है तो उसको क्या टेंशन है, ठीक है, वो 2-3 वेसल रहेगा, वो ले जाएगा तो ले जाए, हाँ, चिम्मच आदि कुछ पड़ा है, लेकिन जिसके पास करोड़ों का हीरा हो तो उसको तो कितना टेंशन रहता है कि नहीं, फिर लाइट खोल कर देखता है, अरे यहाँ तक तो कोई आया ही नहीं है, फिर बंद कर कर सो जाता है, हाँ। तो ये पूरी कल्पना से कितनी प्रवृत्ति, कितने परिणाम जीव के कषाय के हो रहे हैं, उसका मूल कारण क्या, कल्पना कि इसमें सुख है, इससे मुझे लाभ है, जो तिर्यंच के जीव को नहीं होती है। यानी कि हम ही तिर्यंच थे तो हमको तभी नहीं थी, लेकिन मनुष्य में आए तो हमने सीख लिया ये सब दूसरे के पास से कि सब करते हैं तो हम भी करें, सब समझ कर करते रहेंगे ना। हमारे बाप दादा कर रहे हैं तो वो भी समझ कर ही कर रहे हैं ना, हीरा सब बराबर सेफ रख रहे हैं, तो हमको भी वही करना चाहिए क्या। तो कितना कर्म बंधन जीव करता है। और उससे मुझे सुख प्राप्ति होगी ऐसी मान्यता करता है, लेकिन स्वयं परम आनंद रूप છું હું એમ પણ નિશ્ચય નથી। भले जिनवाणी के आधार से वो समझाए कि आत्मा में सुख है, आत्मा परम आनंदमय है, लेकिन वो स्वरूप का अनुभव, सुख का वेदन उसको हुआ नहीं है। सुख आत्मा में पूरेपूરું भरेલું છે, એવો જે સ્વરૂપ સુખનો નિશ્ચય હોય તો જ કોઈ પણ પૂતગલ પદાર્થની પર્યાયમાં કાંઈ પણ પર્યાય હોય, કોઈ પણ આકાર હોય, એમાં સુખ છે એવો जीव निश्चय ये बदले। जब आत्मा का भाव भाषण होता है तो पता चलता है कि मेरे अंदर में इतना सुख है, इतना सुख है कि उसका बॉटम ही नहीं है कोई, क्या। तो उसका जो अभिप्राय है कि पर पदार्थ में सुख है, ये बदल जाता है फिर, क्या। निश्चयना विषयમાં, श्रद्धाना विषयમાં, अभिप्रायना विषयમાં, रुचिना विषयમાં एक साथे परस्पर 2 विरुद्ध विषयનો समावेश થઈ શકતો નથી। આ सिद्धांतिक बात है। अगर आत्मा में सुख है ऐसा भाव भाषण हुआ तो पर पदार्थ में सुख है ऐसा अभिप्राय रह ही नहीं सकता है,
क्या कहते हैं, ये सिद्धांत है कि जिसको आत्मा में सुख का पता लगा उसको विश्व का कोई पदार्थ में सुख है ऐसा अभिप्राय कभी भी हो ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। ये सिद्धांतिक बात है। रुचि बे परस्पर विरुद्ध विषयनी न होय, आत्मा में भी सुख है और पैसे में भी सुख है ऐसा बनता नहीं है। दो परस्पर विरुद्ध है, एक स्व है आत्मा और पैसा ये पर है। स्व है वो पर नहीं है और पर है वो स्व नहीं है, यानी परस्पर विरुद्ध। अगर आत्मा में सुख है तो पर पदार्थ में सुख का नाम निशान नहीं है। अभिप्राय अथवा मत परस्पर विरुद्ध विषयમાં એક સાથે ન હોય, બેમાંથી એક જ જગ્યાએ હોય। એમ સુખનો નિશ્ચય પણ કાં તો આત્મામાં સુખ છે એમ હોઈ શકે, નહીતર અનાદિથી જીવને દરેક અવસ્થામાં ચાલુ જ રહેલો છે કે પર પદાર્થમાં સુખ છે। એ નિશ્ચય એને દરેક અવસ્થામાં ચાલુ હોય છે। 24/7 ये मान्यता कि पर में से सुख मुझे मिलता है, पर पदार्थ में सुख है, ये 24 घंटे उसको चालू रहती है। ज्यां સુધી न बदलाए न टड़े ત્યાં સુધી। और जब भाव भाषण होता है तो ये अभिप्राय चेंज हो जाता है, तब तक ये चालू। प्रत्येक वर्तमान में उसको पर पदार्थ में सुख है ये अभिप्राय चालू रहता है। ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहा है, वैज्ञानिक है क्या, एकदम सिद्धांतिक माने एकदम साइंस है ये। तो साइंस के स्टूडेंट को ये सब सब्जेक्ट बहुत पसंद आएगा। समझ में आया? अंधश्रद्धा वाले को नहीं आएगा, मैजिक वाले को नहीं आएगा। कुछ मैजिक करो, चमत्कार करो और सुख मिल जाए, वो लोग को ये विषय टेक्निकल विषय पसंद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? એટલે આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા, એટલે આ લોકના કોઈ પણ પદાર્થની અલ્પ પણ સુખેચ્છા। फिर कोई भी पदार्थ हो उसमें सुख है ऐसा जो निश्चय, ये स्वरूप आत्म स्वरूप का निश्चय बिना ये टळतो नहीं। कितना भी जिनवाणी का अध्ययन करे, क्या न्याय और तर्क से समझे कि विश्व का कोई पदार्थ में सुख नहीं है, फिर भी अंदर से जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं आता है। ऊपर ऊपर से वाणी में एक दूसरे को भले कहे, सत्संग में कहे कि कोई पर पदार्थ में सुख नहीं है, लेकिन अंदर में जो अभिप्राय है कि मुझे पर में से ही सुख मिल रहा है, ये छूटता नहीं है। क्योंकि स्वरूप का निश्चय हुआ, अपने आत्म स्वरूप का निश्चय हुआ नहीं है। जेने निश्चय बदलाणो होय एने ज एम नथी एम कही सकाय। जिसको भाव भाषण हुआ है या आत्मज्ञान हुआ है, ऐसे जीव को पर पदार्थ में सुख है इसका निश्चय बदल गया है। क्या दूसरे को तो वो निश्चय चालू ही रहता है। ज्यां सुधी निश्चय अनादिनो परमा रागमा ने रागना विषय में पर पदार्थ और अंदर में जो इच्छा हो रही है वो राग, अने रागना विषय, 5 इंद्रिय के जो विषय है एमा सुख है, एवो निश्चय ज्यां सुधी अंदर में पड़्यो छे, चालू रह्यो छे, ત્યાં સુધી આત્મામાં સુખ એને ભાસ્યું નથી। આત્મામાં સુખ લાગ્યું નથી, આત્મામાં સુખ છે એવો નિશ્ચય નથી, એવો પ્રતિભાસ નથી, એવો વિચાર હોવા છતાં આત્મામાં સુખ છે એવું લક્ષ્ય નથી। હવે એ બાજુ 35 पेज में थोड़ा छोड़ दीजिए।
भूमिका में से उसको बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए और उत्कृष्ट मुमुक्षुता में आने के लिए उसे क्या करना चाहिए? में क्या है कि एक तो सामान्य जीव संसार के जो है, जैसे अमेरिका में है या चाइना में है, वो भी एक मनुष्य जीव है क्या। उसमें से जो बहुत कम जीव ऐसे होते हैं कि जिनको देवगुरु शास्त्र का योग पूर्व के पुण्य से मिलता है, तो उनको आत्म कल्याण करने की इच्छा जन्मती है। ऐसे जीव को सामान्य मुमुक्षु कहने में आया है। फिर वो जीव जब जिनवाणी का अध्ययन, सत्संग आदि प्रवृत्ति में रहता है, तो धीरे धीरे उसकी भावना बढ़ती है और उसको पर पदार्थ में सुख नहीं है ऐसा अंतर विचार में, भाव में आता है। इसलिए वो सुख प्राप्त करने के निमित्त जो सत्संग, शास्त्र अभ्यास आदि है, उसमें अपना समय व्यतीत करता है ज़्यादा, और संसार के कार्य को जो सुख के निमित्त पहले समझता था, ऐसे कार्य को गौण करता है, कम करता है। ऐसा जीव है मध्यम दशावान मुमुक्षु है। समझ में आया? हम कहाँ कहाँ है हमको समझ लेना, हम कौन सी भूमिका में वर्तमान में है वो हमें समझ लेना। ऐसा ही उसमें से कोई एकाध दो पांच कम मनुष्य जो है, जो मध्यम दशा में आया है, उसको अंतर आत्म प्राप्ति का जो मार्ग है, आत्म प्राप्ति की जो विधि है, जब उसको समझ में आती है, तो वो प्रकार से वो आगे बढ़ता है। ये जो विधि है, ये 254 पत्र का ही विषय है क्या। और उसमें कल तक तो लिया था कि अपना दोष का पक्षपात छोड़ना, आज सुबह भी आया था। हाँ, दोष का छुपाना ये मायाचार है क्या। तो वो प्रयास में वो आता है। जो मध्यम दशा वाला जब उत्कृष्ट मुमुक्षु बनना चाहता है, तो वो प्रयास में एंटर करता है क्या। जो सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं और प्रयास नहीं करते, वो मध्यम दशा वाले हैं। समझ में आ रहा है? और जो प्रयत्न में आते हैं, और प्रयत्न भी एकदम साइंटिफिक रीत से प्रयत्न करे, जैसा यहाँ दिया है, अपनी मर्जी के अनुसार प्रयोग नहीं करे क्या। बेहतर तो सब धर्म में आने वाले कुछ न कुछ करते रहते। कोई यात्रा करता है, कोई त्याग करता है, कोई व्रत करता है, जिसको जो मर्जी है वो करता है, ऐसा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से हमको आत्मज्ञान होगा, हमारा परिभ्रमण मिट जाएगा, उसका जो विधि है, उसका जो मार्ग है, उसको समझकर उस अनुसार वो प्रयास करता है। यथार्थ प्रकार से जो प्रयास करता है क्या, प्रयास करते करते जब उसको कोई ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है, तो वो उत्कृष्ट मुमुक्षु हो जाता है। ज्ञानी पुरुष की निस्संग रूप पहचान जिनको होती है, उसको उत्कृष्ट मुमुक्षु कहने में आता है। ऐसे जीव को ही आत्मज्ञान होता है। दूसरे जीव को 3 काल में आत्मज्ञान हो सकता नहीं। यहाँ पे एक बात आई कि जब मुझे भाव भाषण होगा, तब मेरा जो निश्चय है अपने अंदर में से सुख का और पर में सुख न होने का, वो चेंज होगा। तो आज की जो मेरी दशा है, वहाँ से तो वो प्रयास करने के लिए भी मुझे एक बल चाहिए या निश्चय चाहिए। तो वो मुझे कहाँ से, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? बल जो है वो कार्य करने
कार्य क्या करना वो समझ में आने पर भी वो कार्य करने का जीव को बल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये परिस्थिति रहती है सामान्य। क्या आत्मज्ञान करना है, एग्जाम्पल, वो समझ गया, सब समझ गए ना। लेकिन वो कार्य करने के लिए जो बल चाहिए, संसार के कार्य के मध्य में रहते हुए वो कार्य पूरा करने के लिए क्या चाहिए आपको? अभी समझ नहीं चाहिए, समझ तो आ गया कि हमको आत्मज्ञान करना है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, ये प्रश्न है ना। तो जी वो कार्य में उसको बल नहीं है, इसलिए वो दूसरे कार्य में अपना समय व्यतीत करता है। ऐसी एक परिस्थिति होती है। ये तो समझ में आया कि नहीं? तो बल है ना, वो दो जगह से मिलता है। एक तो आत्मा से मिलता है, तो जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है ना उसको ही वो मिलता है। आत्मा का अनुभव जिसको नहीं हुआ है उसको आत्मा का बल नहीं मिलता है। आत्मा का बल उसको कैसे मिलता है ज्ञानी को? कि जभी उसको कमजोरी से, अस्थिरता से राग द्वेष होता है तो वो अपने आत्मा में चला जाता है, तो वो राग द्वेष को उसका नाश कर लेता है। लेकिन मुमुक्षु को आत्मज्ञान नहीं है तो वो क्या करे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको देवगुरु शास्त्र का अवलंबन से बल आता है। ये दो ही प्रकार है, तीसरा कोई प्रकार नहीं है। मुमुक्षु को आत्मा का अनुभव नहीं होने पर आत्मा का अनुभव करने वाले देवगुरु शास्त्र का अवलंबन से बल आता है। उसका आधार लेने से उसको बल आता है, और फिर ये प्रयोग में वो आ सकता है, और फिर भाव वासन उसको होता है। ऐसा प्रकार है। नेतर क्या होता है कि वो कुटुंब, परिवार, पैसे, शरीर का आधार लेकर वो रहा है, अभी तो ऑलरेडी वही कर रहा है। कुटुंब के आधार से मैं जीता हूँ, शरीर के आधार से मैं जीता हूँ, श्वासोश्वास के आधार से मैं जिंदा रहता हूँ, क्या पैसे के बैंक बैलेंस के आधार से मैं जिंदा रहता हूँ। ऐसा जो पर का आधार लिया है तो वो निर्बल हो जाता है। क्या? तो देवगुरु शास्त्र का आधार जब लेता है तो उसको दो लाभ होता है। एक तो पर का आधार उसको छूट जाता है, अशुभ निमित्त का आधार उसको छूट जाता है, और एक तो आत्मा की प्राप्ति के लिए बल उत्पन्न होता है। तो ड्यूअल बेनिफिट, वन एक्शन टू बेनिफिट्स। हाँ, हाँ, विचार है, लेकिन विचार बल नहीं है। विचार माने उसको पता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसको पता है कि पर पदार्थ में अपनत्व मुझे नहीं करना चाहिए, पर पदार्थ का कार्य का कर्ता मुझे बनना नहीं चाहिए, इसलिए कि उससे मेरा परिभ्रमण होता है, ये पता है जिनवाणी के माध्यम से। लेकिन फिर भी पर पदार्थ में वो अपनत्व करते ही रहता है, उसका कार्य का कर्ता बनते ही रहता है। समझ में आने पर भी कोई अंदर में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो परिवर्तन करने के लिए जो बल चाहिए वो बल नहीं है उसके पास। वो बल इसलिए नहीं है कि उसने देवगुरु शास्त्र का आधार नहीं लिया है, उसमें अर्पणता नहीं है उसकी। सर्वार्पण बुद्धि से सत्संग को उपासा नहीं है उसने। ये कृपाणुदेव के शब्द, कृपाणुदेव का शब्द ये है, सर्वार्पण बुद्धिए सत्संगने એને ઉપાયસો નથી। सत्संग किया लेकिन सर्वार्पण बुद्धि से नहीं किया,
पूरी अर्पणता से नहीं किया कि इसमें से ही मेरा हित होगा, ऐसी अर्पणता नहीं है उसकी। ये भी अच्छा है करो, दूसरा भी कोई अच्छा काम है वो भी करो, यात्रा भी अच्छा है वो भी करो, ऐसे अनेक प्रकार के अर्पणता के भिन्न भिन्न कार्य में उसकी अर्पणता बढ़ गई है, डिवाइड हो गई है। सत्संग में सर्वार्पण बुद्धि नहीं आ रही है, पूरी अर्पणता। उसमें जितनी अर्पणता करने की शक्ति है ना, उतनी बस है उसको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो अनेक जगह में वो उसको डिवाइड करता है वो, इसलिए वो कार्य होता नहीं। कार्य कठिन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से नहीं करता है, इसलिए कठिन है। साहब जी, सर्वार्पण बुद्धि से थोड़ा और उसको और एक्सपैंड कर सकते हैं क्या? ऐसे आपने जो एक अभी कहा कि दूसरे दूसरे जगहों पे सर्वार्पण, तो वो तो मेरे में नहीं दिख रहा है। मतलब सडनली सत्संग में समर्पण है, बट शुभ के समर्पण के दूसरे और एक्टिविटीज़ में मैं नहीं करता हूँ। तो ये तो एक ख्याल है कि आई हैव टू। और अशुभ में? अशुभ में तो बहुत है साहब जी, मतलब तो वो पहले जाना चाहिए ना। तो उसके लिए भी जो बल चाहिए तो कैसे? तो बल तो है आपका, लेकिन 100% आप में जो बल अवेलेबल है प्रगट, उसमें से 80-90% कुटुंब परिवार और पैसे में चला गया है जी। अभी 20% अवेलेबल है अर्पणता के लिए, बराबर। तो उससे काम नहीं होता है। कैसे बढ़ाना साहब जी? समझ में आ रहा है कि नहीं? बराबर। ये पूरा 100% यहाँ लग गया तो काम हो जाता है। तो वहां से निवृत्त करना, क्योंकि वो अशुभ है, उसके अशुभ निमित्त है, तो वो आपको परिभ्रमण का ही कारण है, तो उसका आश्रय शरण हम क्यों ले? बराबर। क्या समझ में आ रहा है? जी साहब जी। हाँ, तो ये विचार में जब निश्चय बराबर करेगा जीव, क्या कि मुझे किस कार्य से फायदा है और किस कार्य से नुकसान है, तो वो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम। वही तो अर्पणता कर रहा है ना जी। सामने वाला तो करवाता नहीं है कोई, हम ही तो स्वयं जाकर अर्पणता करते हैं। शरीर कुछ कहता नहीं है कि तू मेरे में अर्पणता करो, कहता है क्या शरीर? प्लीज डिपेंड ऑन मी, ऐसे शरीर कहता है? प्लीज प्लीज आत्मा यू डिपेंड ऑन मी, नो। तो कुछ कहता है। लेकिन जीव है वो शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? बराबर। पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। पैसा नहीं कहता है कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड करो। हाँ, अगर पैसे में ज्ञान होता तो वो सोचता है ये पागल मेरे पर डिपेंड कर रहा है, ये मरने वाला है। तो नहीं है तो कह भी नहीं सकता। अगर उसमें ज्ञान होता तो कह देता, शरीर में ज्ञान होता तो वो कह देता ये पागल तेरे में अनंत शक्ति है, तू मेरे ऊपर क्यों डिपेंड करता है? हाँ? मैं तो नासवान हूँ, मरण होगा तो मुझे कहाँ ले जाते हैं? यहाँ पे हैदराबाद में स्मशान इमली बन। हाँ, हमारे वहाँ अलग नाम है। तो ये तो नासवान चीज है, तू तो कायम रहने वाली चीज है, तेरे में अनंत शक्ति है। तू चारों गति में नरक में करोड़ों साल रहा, लेकिन तेरे आत्मा में कोई स्क्रैच नहीं हुआ। करोड़ों साल आत्मा नरक में रहा, मारा काटा, गंदगी में रहा, तो आत्मा में से एक गुण भी कम नहीं हुआ है, एक खर्च, एक स्क्रैच नहीं है आत्मा में। ऐसा अनंत शक्ति वाला आत्मा है, तो तू शरीर के आधार लेता है, पैसे का आधार लेता है, जड़ पदार्थ का तू आधार लेता है। वो शरणबुद्ध है ही नहीं, वो कोई शरण देता ही नहीं। क्या शरण तो चार है, चत्तारी शरणम पवजामि, अरियंते शरणम पवजामि,
શરણમ પવજામી સાહુ શરણમ, અને કેવડી પણ તો ધમ્મો શरणम पवजामी। केवड़ी भगवान ने परूपित किया हुआ जो धर्म है वो ये है, ये शरणभूत है, ये केवड़ी भगवान का बोध है। ये इसका तू शरण ले, पैसे कुटुंब परिवार का शरण छोड़ दे। तो मुझे जो वैल्यूएशन आना चाहिए सत्संग का कि यहीं से मुझे सुख मिलेगा, वो नहीं है। आई एम डिपेंडेंट कि मुझे ये पर में सुख मिलेगा, ऐसा जो मेरा, जैसे आपने बोला कि अभिप्राय है, तो आई हैव टू शिफ्ट। मैं बोला आपका है कि नहीं? नहीं है साहब जी, ऐसा वैसा ही अभिप्राय है, तो मुझे वो प्रयोग पूर्वक शिफ्ट करना है। पहले समझ में आपको आना चाहिए, ये समझ की भूल है ये। दिस इज अ मिस्टेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है को मिटानी है, तो हमको क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, बस उतना ही है। उसके लिए कोई 1 लाख का डोनेशन दे दे कोई, कि मैं समझ नहीं रहा हूँ तो अभी समझ जाऊँगा, तो उससे नहीं होता है। बराबर। मिसअंडरस्टैंडिंग को राइट अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ जाती है, कहाँ चली गई, वो भी पता नहीं चलेगा। बराबर। हाँ बराबर कि नहीं? उसको ढूंढना पड़ेगा, वेयर इज माई मिसअंडरस्टैंडिंग, वेयर इज इट गॉन, इट डिसअपियर्ड समवेयर। एक बार समझ हुई तो जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो परदेश चली जाती है। राइट। हाँ, तो आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि मुझे सुख की प्राप्ति करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू सर। थर्टी 35 पेज में एक સ્વરૂપ લક્ષ થતા અંતર સ્વરૂપનું લક્ષ હોવાથી અને જ્ઞાનની ક્રિયા અથવા અંતરની ક્રિયા કહેવામાં આવે છે। એને શું કહેવાય? જ્ઞાનની ક્રિયા। क्रिया 3 प्रकार की है। एक हमने को आता है ना भक्ति मार्ग, एक तो क्रिया मार्ग और एक तो ज्ञान मार्ग, 3 है ना। तो ये ज्ञान मार्ग है। क्या कि अंतर क्रिया, ज्ञान की क्रिया अथवा अंतर की क्रिया कहेवामां आवे छे। आता है ना ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्ष, समझ में आ रहा है? ये सूत्र है एकदम फेमस, ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष। तो शास्त्र का ज्ञान और शुभ क्रिया ये मोक्ष, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। ऐसा कोई अर्थ करते हैं कि जिनवाणी का ज्ञान और शुभ क्रिया, त्याग की, व्रत की क्रिया, तप की क्रिया, ये मोक्ष, ऐसा नहीं है। आत्मा का ज्ञान और आत्मा में एकाग्रता करने की क्रिया, ये मोक्ष का कारण है। ये ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्ञप्ति तो नाता पणे की जो क्रिया है ना, वो ज्ञप्ति क्रिया है। सतत नायक पणे जानने का कार्य पणे जो पर्याय परिणमती है, वो ज्ञप्ति पर्याय है। ये तो अंतर्मुखी पुरुषार्थ, ये एकाग्रता की जो क्रिया से अंतर्मुखी पुरुषार्थना अंशो शरू थाय छे। एटले पहलो दोष छे ए त्रीजा दोषनी साथे सीधो संबंध छे। पहला दोष कौन सा है? और तीसरा पदार्थ का निर्णय नहीं होना। हाँ, समझ में आया? और निर्णय, इसको दोनों को कनेक्शन है अंदर में। क्या पहलो दोष और त्रीजो दोष साथे रहे छे। ज्यां सुधी आत्मा सत परम आनंद स्वरूप है एवो निश्चय नहीं,
ત્યાં સુધી મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલાક આનંદ અનુભવાય છે. એટલે આમ વૈરાગ્ય હોય બાર મેં, સાદાઈવાળું જીવન અને આચરણ હોય તો પણ મુમુક્ષુતાની જે સાતા છે એ સાતા વેદની અંદર એને સુખ લાગે છે. એ પૌદ્ગલિકના નિમિત્તે થતું सुख है. अभी क्या होता है कि मुमुक्षु जब होता है तो फिर अनेक प्रवृत्ति जो पहले करता था वो सब संक्षेप में होती है. उसको पहले अनेक मित्र होते हैं, फिर ये मुमुक्षु जब बनता है तो मुमुक्षु उनके मित्र हो जाते हैं. तो वो मित्र का क्या होता है, उसको छोड़ देता है वो. ऐसे अनेक प्रवृत्ति पाप की है वो घटने लगती है क्या. और फिर जीवन भी सिंपल होने लगता है क्या. सादाईवाળું जीवन અને आचरण એને થાય છે और उसमें उसको अच्छा लगता है अंदर में, क्योंकि कषाई कम हो गए ना. पहले तो अनेक इच्छा यहाँ वहाँ दौड़ना, हाँ, ये सब कम हो गया. मुमुक्षु जब होता है तो क्या होता है कि वो सादगी वाला, बहुत आगे घूमना फिरना, मित्र के पास जाना, ये सब धीरे धीरे कम होता है ना क्या. तो अंदर में उसको थोड़ी शांति लगती है, अच्छा लगता है. क्योंकि कषाय में बहुत आकुलता है और यहाँ जब उसके कषाय और कषाय के अनुरूप प्रवृत्ति जब कम हुई तो उसको साता वेदनी साता लगती है अंदर में. लेकिन ये जो अंदर में आकुलता कम हुई है ये वास्तविक अनाकुलता सुख नहीं है. बहुत लोग यहाँ ही अटक जाते हैं, मंद कषाय की प्रवृत्ति में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं क्या. रोज कार्यक्रम बन जाता है कि रोज दर्शन करना, फिर गुरुदेव की सीढ़ी सुनना, फिर 2-4 घंटा स्वाध्याय करना क्या. ये सब प्रकार में जो कषाय है वो कम हो जाते हैं, यानी कि मंद कषाय होते हैं, शुभ भाव होते हैं, तो उसको उसमें सुख लगता है. लेकिन ये वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि आत्मा में से सुख और शांति जो प्रकट होती है उसकी क्वालिटी अलग है और इसकी क्वालिटी अलग है. जेम आइसक्रीम खाता उनाळामां सारू लागे है ना. 2 मिनट. आइसक्रीम खाता उनाळामां गर्मी होती है ना, अप्रैल मई, तो आइसक्रीम खाने का लोग निकलते हैं ना. गर्मी है तो लेट्स गो एंड हैव आइसक्रीम. तो अच्छा लगता है उसको. अने सियाड़ा में गरम गरम पाक खाए तो अगर अभी क्या है सियाड़ा जैसे है ना, अभी विंटर, तो अभी क्या आइसक्रीम नहीं खाना, अभी गरम गरम चाय पीना. हाँ, बहुत मजा आवे ने गरम गरम चाय हो तो. हाँ, ये लोकोने ए सारो लागे छे. ये सातावेदनी उदय में सारू लगे. ये सातावेदनी अंदर में सातावेदनी का भाव है. ये पण जीव ने पौद्गलना निमित्ते थतुं सुखनु वेदन छे, आत्मिक सुखनु वेदन नथी. साता असाता वेदनी नो प्रकृति भेद छे. असाता वेदनी नो तो स्वाद एवो छे कि कोईने सारो न लागे. असाता वेदनी जो तकलीफ वाला होता है ना, रोग होता है, अंदर में टेंशन होता है, शरीर में दर्द होता है, ये सब असाता वेदनी है ना. तो जीव ने ये सुखदायक न लागे, सारू न लागे. पण ते जीवोने के जेवोने आत्मिक सुखनु ज्ञान भान लक्ष्य नथी तेने ये प्रिय लागे छे. साता वेदनी तो सबको अच्छा लगता है क्या. એટલે આશ્ચર્ય ચિહ્ન મૂક્યું છે શું કે મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલા આનંદ અનુભવે. કૃપાળુ દેવ को आश्चर्य हो रहा है, ये मुमुक्षु है और उसको
आनंद हो रहा है बार में क्या? એને મુમુક્ષુ કેમ કહીએ? અને તેથી આ લોકની અલ્પ પણ શુભેચ્છા એને રહ્યા કરે છે, એને એ ભાવ ચાલુ રહે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક કોકને કોઈ વિષયમાં મંદપણે તો એને સુખની ઈચ્છા અભિપ્રાયથી રહે છે. ભલે એને અનેક પદાર્થો પહેલાં જે ભોગવવાનો પ્રયાસ કરતો હતો એને ઘટાડ્યા, સાદગીવાળું જીવનમાં એ આવ્યો, પણ જે પદાર્થનો અત્યારે એને યોગ છે એમાં એને બહુ સારું લાગે છે. શું? એટલે એ જીવ ત્યાં અટકી જાય છે. ટાઈમ થઈ ગયો છે. साहब जी एक क्वेश्चन. ज्ञानी को उत्कृष्ट मुमुक्षु भी कहने में आता है, तो यहाँ पे तो तीव्र मुमुक्षु यहाँ लिया है, ये पत्र में तीव्र देखो इसमें लिया है पहले शुरुआत में. तीव्र मुमुक्षुता ऐसा लिया है, फर्स्ट पैराग्राफ में लिया ना. तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न ज न होय, और फिर कृपाणु देवी उसका नीचे अर्थ करते हैं. तीव्र मुमुक्षुता ये છે કે અનન્ય પ્રેમે મોક્ષના માર્ગમાં ક્ષણે ક્ષણે પ્રવર્તવું, ये ज्ञान दशा है, ये ज्ञानी की दशा है कि ज्ञानी अनन्य प्रेमे आत्मज्ञान का जो कार्य है, जो पुरुषार्थ है, उसमें उनको बहुत प्रेम है, खुशी है, रुचि है, और ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास क्षणे क्षणे करते हैं. जैसे कोई व्यापारी हो तो उसको एक बड़ा ऑर्डर विथ एडवांस पेमेंट मिले, हाँ, बड़ा ऑर्डर 1 साल का पूरा ऑर्डर मिल जाए एडवांस में, विथ एडवांस पेमेंट इन फुल, डीडी या आरटीजीएस मिल जाए, तो वो ऑर्डर लेने को जाए जब, तो उसके अंदर में कितना हर्ष होता है, कितना खुशी होता है कि नहीं होता है? हाँ, ऐसी ही खुशी ज्ञानी को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में होती है, अंदर में. अपना स्व कार्य की खुशी उतनी होती है, और ये खुशी के कारण से उत्साह होता है, और उत्साह से पुरुषार्थ बढ़ता है, और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं. साहब जी, मिसअंडरस्टैंडिंग की जो बात आई थी साहब जी, तो राइट अंडरस्टैंडिंग में कैसे आना, वो थोड़ा और. सत्संग ये सबसे बड़ा साधन है क्या, और उसमें भी अगर आप प्रश्न आदि आपके परिणाम खोल कर रखेंगे तो आपको कोई दूसरा मुमुक्षु जवाब देगा तो आपको ये भी पता लगेगा कि ये काम इसने तो कर लिया है उसके चर्चा से. तो आपको आपसे आगे कौन है ये भी आपको पता लग जाता है. तो आपसे जो आगे है उसके पीछे लग जाना, तो वो जो आपको जो भी समाधान करना है तो वो आपको हो जाएगा क्या. इसलिए अपने परिणाम खोलने में ये सबसे बड़ा लाभ है. जो हम परिणाम को छुपाते हैं, बोलते नहीं हैं, दूसरे बोलते हैं तो हम सुन लेते हैं, तो दूसरे को ही लाभ होगा, आपको लाभ नहीं होगा. आप समझ रहे हैं कि हमको लाभ है, हम मौन रहे तो हमको फायदा है, किसी को पता नहीं चलेगा हमारे अंदर में क्या दोष चल रहा है. तो पता नहीं चलेगा तो वो दोष निकलेगा भी नहीं. समझ में आ रहा है? आपका जो दोष है वो आप ही नहीं कहेंगे तो वो कभी निकलने वाला ही नहीं है, ऐसा समझ लेना. आप कहेंगे तो दूसरा उसके बारे में कहेगा कि मैंने तो ऐसा किया है ये दोष मिटाने का, मेरे में भी यही दोष था पहले, और मैंने इस प्रकार से प्रयास कर कर ये दोष को कम किया, मिटाया.
यानी मैं ये प्रयास अभी कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सफलता मिलती है, ये सब बात आपको वहाँ जानने में आएगी। लेकिन आप मौन रहेंगे तो आपको ही बड़ा नुकसान है क्या। तो इंटरैक्टिव सत्संग होना चाहिए, इंटरैक्टिव, इन्वॉल्व। मौन रहना नहीं चाहिए, गुनाह है, एक बड़ा क्राइम है कि जब मौका आया सुखी होने का तो ये जीव मौन रहता है। जैसे वो ऑर्डर देने को आया विद एडवांस, तो आप जाकर बाथरूम में छुप गए, तो वो क्या करेगा, कितना टाइम वेट करेगा, हाँ? वो तो चला जाएगा। ऐसे ये मौका भी चला जाएगा, जो मौका पूर्व के पुण्य से मिला है। सत्संग आदि ये बहुत बड़ा साधन है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं आगे बढ़ने का, तो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वहाँ आपके परिणाम आपको खोलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। बहुत कम लोग अपने परिणाम खोल रहे हैं, छुपाते हैं। तो आज आया ना, क्या उसका हुआ मतलब, मायाचार हो गया। जी सर। जहाँ मायाचार का नाश करने का अवसर आया है वहीं जाकर ये मायाचार कर रहा है, तो फिर कहाँ जाकर वो मायाचार छोड़ेगा। ये उसको विचारना चाहिए। साहब जी, ये इससे क्वेश्चन इसके लिए हुआ कि जैसे आप अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो सत्संग आदि से ऐसा समझ तो है कि पर में सुख नहीं है, लेकिन अनुभव में या मेरी रस रुचि देखूं तो पंचेंद्रियों के विषय में वैसा ही है। तो उसको राइट अंडरस्टैंडिंग में फिर वही तो हम आपको बताया कि भाई आपकी जैसी समझ है ऐसी दूसरे की भी समझ है ना। जो मुमुक्षु आपके साथ है वो भी समझता है ना, हाँ। जैसे आप समझते हैं। तो उसमें से एकाध जीव ऐसा है कि वो प्रयास कर कर आगे बढ़ गया हो, ऐसा भी है कि आप ही सबसे हाईएस्ट लेवल में हो। नहीं है, नहीं, हमको पता नहीं ना आप लोग का। नहीं है। अच्छा, हैदराबाद में आप ही हाईएस्ट में हो कि आपसे आगे कोई है? बहुत लोग हैं। हाँ, तो वो आगे है, उसका मतलब ये है कि जहाँ आप निष्फल हुए वहाँ वो सफल हुए हैं। हाँ। उसको ही तो आप आगे कहेंगे ना। हाँ। आपसे कम है सफलता है उसको आप थोड़ी आगे कहेंगे। तो उन्होंने जैसा किया है और कर रहे हैं प्रयास, वो आपको कहेंगे क्या। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। यही साहब जी, कल ऐसे आया था कि अगर मैं दोष का स्वीकार नहीं करूंगी तो मेरी इमेज डाउन होगी, और अगर मैं करूंगी तो इमेज बढ़ेगी। तो अगर मेरे को ऐसे दोष का स्वीकार करते करते अगर मैं वो जो इमेज मेरे को मिल रही उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी और इमेज बढ़ाने के लिए दोष एक्सेप्ट करूंगी, तो तब क्या करना? देखो, वो फ्री मिलता है क्या। आप अपना दोष बताएंगे तो आपको फ्री इमेज इंक्रीज होता है, बराबर है। जैसे आप कोई चीज़, अभी हम लोग दिवाली ऑफर देंगे, बाय दिस टीवी एंड गेट दिस म्यूजिक सिस्टम फ्री। हाँ, तो कोई कहे कि म्यूजिक सिस्टम मेरे को चाहिए इसलिए मैं टीवी लूँगा। म्यूजिक सिस्टम के लिए कोई टीवी परचेस करेगा? आप ऐसा करना चाहते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? टीवी परचेस करने वाले को म्यूजिक सिस्टम मिलता है फ्री। जो फ्री मिलता है उसकी कीमत कम है, और जो चीज़ टीवी है उसकी कीमत ज़्यादा है कि नहीं? कि फ्री की कीमत ज़्यादा है और जो चीज़ ली उसकी कम है। फ्री ऑलवेज कम ही रहेगा ना। वो मेन समझोगे 1 लाख का टीवी रहेगा तो 10-15 हज़ार का म्यूजिक सिस्टम रहेगा, कि उल्टा होगा? 10,000 का टीवी लो और 1 लाख का म्यूजिक
लेकिन इम्पोर्टेंस तो मैं उसको दे रही ना। तो आपको इम्पोर्टेंस वो टीवी का होना चाहिए, म्यूजिक सिस्टम का नहीं होना चाहिए। वैसे आपको ये जो इमेज आपका बढ़ता है उसका इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको आत्मज्ञान होगा उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए ना। और ये तो जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे वो लोग ही कहाँ जाएंगे भविष्य में, उसका कोई ठिकाना नहीं है क्या। तो दुनिया की प्रशंसा से हमको प्रभावित होना नहीं है। साहिब जी दोष व्यक्त करना था साहिब जी। साहिब जी मायाचारी के परिणाम बहुत करता साहिब जी। मायाचारी से दूसरों को ठगने का जो आज सवेरे बात आई थी वो मैं करता हूँ, और वहाँ पे तत्व विचार करके वो दोष निकालने का प्रयास भी नहीं किया साहिब जी। और फिर नुकसान भी आप कर रहे हो। हाँ साहिब। और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, बराबर है ना। हाँ साहिब। तो आपको पुण्य का भरोसा होना चाहिए, आपके पुण्य का, कि मेरे नसीब में हो, मुझे मिलेगा ही। ये दुनिया में कोई भी ले नहीं सकता मेरी चीज़ जो मुझे मिलने वाली है। इतना भरोसा आप रखिए क्या, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मायाचार के परिणाम छोड़ सकते हैं, क्योंकि मायाचार के परिणाम पे तो एक समय की पर्याय है, क्या है। और आत्मा तो अनंत गुण संपन्न है, जो नक्की करता है कि मुझे मायाचारी छोड़ना है, तो कैसे नहीं छूटेगी क्या। बलवान आत्मा है, अनंत शक्ति वाला है, वो नक्की करता है कि मायाचारी छोड़नी है तो तुरंत छोड़ देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले पहले सहजता से न हो, पहले मन के निश्चय से हो, भले कृत्रिम हो, क्या कृत्रिम माने आर्टिफिशियलिटी हो, लेकिन सही है ना काम, इसलिए करना चाहिए। फिर आस्ते आस्ते वो सहज हो जाएगा। कोई कहे कि मुझे अंदर से नहीं हो रहा है कि मैं मायाचार नहीं करूं, तो मैं कैसे करूं, ऐसा भी प्रश्न पूछते लोग कि अंदर में तो मुझे ये करने का भाव नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे करूं ये। तो भाई आप जोर लगाओ, जिद में आकर करो, क्योंकि वो सच्चा है, आपका हित है उसमें क्या। तो अगर आप 1 2 4 5 10 बार किया तो फिर आपको वो सहज हो जाएगा। फिर आपको उतना बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका लाइफस्टाइल ही वो टाइप हो जाएगा। जैसे मायाचार करने का जो अभी लाइफस्टाइल है वो बदल कर सरलता का, निष्कपटपने का लाइफस्टाइल हो जाएगा, और बाद में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और अंदर में आपको जो डंक होता है कि मैंने ये गलत कर रहा हूँ, ये सब निकल जाएगा। कोई भी गलत काम करता है तो उसका आत्मा को अंदर में तकलीफ तो होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन वो तकलीफ को इग्नोर कर लेता है, उसको एक बाजू कर कर वो गलत काम करता है। समझ में आ रहा है। साहिब जी शुभ भाव से धर्म नहीं है ऐसे समझन है, लेकिन शुभ भाव का आदर है साहिब जी अंदर में। कैसे पता चला। जैसे मंदिर जाता हूँ, वहाँ पे दान पेटी में पैसे डालता हूँ, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि शुभ भाव से मेरे को कुछ मिलेगा, मतलब कितना रिटर्न में कितना मिलेगा। 100 रुपया डाला तो कितना मिलता है, क्या इधर चलता है हैदराबाद में। 100 डाला तो कितना मिलेगा, 1000 के 10,000 के लाख, नहीं मालूम साहिब जी, लेकिन मिलेगा करके ऐसा है। फिर मिलेगा तो वापस आप दान पेटी में ही डालेंगे, तो क्या फायदा। देव गुरु शास्त्र और ज्ञानी, एक कृपाणु देव कहते हैं के पास संसार की कोई याचना नहीं करनी चाहिए। वो तीव्र दर्शन मोह का परिणाम होगा। क्या होता है, मिथ्यात्व का परिणाम तीव्र हो जाता है। देव गुरु शास्त्र और ज्ञानी के पास संसार की कोई भी चीज की चाहना, उनके भक्ति करने, मुझे ये संसार में मिले,
रिटर्न में ऐसी चाहना कभी सपने में भी नहीं रखनी चाहिए। आपको भीख मांगने की छूट है, लेकिन ये इतनी जगह में नहीं मांगना, बाकी पूरे दुनिया में मांगो। आप मांगना है तो एक जगह ये छोड़ दो आप, देवगुरु शास्त्र जहाँ है वहाँ भीख कभी नहीं मांगना। कि मेरा फैमिली ठीक हो जाए, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, हाँ है ना, मेरा बिजनेस थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, मेरा पेमेंट नहीं आया है तो आ जाए, मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, भगवान बहुत तीव्र मिथ्यात्व का बंधन होता है वहाँ। एक वही स्थान में कभी मांगना नहीं, बाकी आपको जिसके पास मांगना है मांगो संसार में, अगर आपको चाहिए तो। साहिब जी जो देवगुरु शास्त्र और ज्ञानी के बात का अवलंबन लेने की बात आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है साहिब जी कि एक पॉइंट तक तो मैं लेती हूँ कि 90% तक लेती हूँ कोई सिचुएशंस में, और वहाँ पे आके मेरे में ज़ोर नहीं है कि मैं पूरा 100% वहाँ ज़ोर लगाऊँ। तो उसके लिए मुझे कैसे प्रयास करना चाहिए? पहला ऐसा समझना कि या तो 100% है या तो 0% है। देयर इज नो 90%। 99.999 है ना, ये 0 है। 0 में और 99.9 में कोई फर्क नहीं है। आइदर इट इज 100 और इट इज 0। एक तो ये साइंस है, समझ में आया। तो हम लोग अगर 90% मानते हैं, उसका मतलब क्या है कि 10% अपनी मर्जी से करते हैं, 90% आज्ञा से करते हैं, 10% अपनी मर्जी से करते हैं, तो कभी भी आत्मकल्याण नहीं होगा। सर जी, अभी जो बात आई कि देवगुरु शास्त्र से कुछ नहीं मांगना, तो मुझे संसारिक, हाँ संसार, मुझे अपने में एक ऐसा भाव पकड़ में आता है कि मैं प्रयोग करूं या मैं कोई प्रयास करूं अंतर्मुख होने का, तो उसमें जो मुझे पुण्य का बंधन होगा, उससे मुझे ऐसे सहयोग मिलेंगे कि आगे चल के भी ये काम मैं कर सकूँगा। तो उससे मुझे तो आपको सोचना चाहिए कि वर्तमान में वो आपको पुण्य से मिले हैं, संयोग के नहीं मिले हैं। मिले हैं। तो मिले हैं तो आगे का क्यों आप पोस्टपोन कर रहे हो? तो फिर आगे जाकर आगे का पोस्टपोन करेंगे। ऐसे ही पोस्टपोन करते करते कभी आप काम नहीं करेंगे। समझ में आया? हाँ। तो हमारा पता मिलो तो आपने तो नक्की किया था ना भूतकाल में कि मैं पुण्य करूंगा तो भविष्य में मुझे इसके प्रयोग के निमित्त मिलेंगे। तो प्रयोग के निमित्त मिले तो आपको वापस आपने नक्की किया कि और भी मैं पुण्य करूं तो और भी मुझे आगे जाकर निमित्त मिलेंगे। तो निमित्त मिलने पर कोई काम नहीं होता, निमित्त से थोड़ी काम होता है, काम तो खुद से होता है। और खुद का काम करने वाले को निमित्त आकाश में से आ जाते हैं। उसको નિમિત્તની દ્રવ્ય એને કહેવાય કે જેણે પોતાના કાર્ય માટે નિમિત્તની રાહ જોવી પડે नहीं। ये गुरुदेव ने व्याख्या की है द्रव्य की। आत्मद्रव्य उसको कहते हैं कि जिसको अपने स्वकार्य करने के लिए निमित्त की राह देखनी पड़ती नहीं। वो जब रेडी है तो निमित्त आ जाएगा, अपने आप कुदरती आ जाता है। दिन रात रहे तद ध्यानमयी पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पदते वरते जयते प्रणम
ક્ષમાપના. ગુરુને આધીન થઈને પ્રવર્તન કરવાવાળા અનંત અનંત પુરુષોએ સત્ય માર્ગને પ્રાપ્ત કરીને અનંત સુખને પામ્યા છે. અસીમ ક્લેશ તથા અપાર દુઃખોને ટાળીને અનંત સુખ સુધી પહોંચવા તથા અનાદિકાલથી અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વને મટાડીને અનંત સુખને પામવા માટે શ્રી ગુરુજી કૃપા એ જ સર્વોત્કૃષ્ટ સાધન છે. જે જીવો પૂર્વે સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત થયા છે, વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે તથા ભવિષ્યમાં પ્રાપ્ત કરશે, તે સર્વે સત્પુરુષની ઓળખાણ કરીને પરમેશ્વર બુદ્ધિમાં આવીને ગુરુ આજ્ઞાની આરાધનાને કારણે એ દશાને પ્રાપ્ત થયા છે અને થશે. હે બોધ બીજદાતા, અમે પણ એકમાત્ર મોક્ષની અભિલાષા અને ઓળખાણનું કાર્ય પૂરું કરીને પરમ વિનયમાં આવીને આજ્ઞાને માથે ચડાવીને આ મનુષ્ય ભાવને સફળ કરી એ જ ભાવના સાથે આપના વંદન કરે છે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. જીનવાની માતનો જય હો. સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. ત્રિકાલવર્તી પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંતોનો જય હો. સર્વે જ્ઞાની ધર્માત્માઓનો જય હો. हेलो. अभी 9:15 9:15 नाटक स्टार्ट होगा. 9:15 पर नाटक स्टार्ट होगा.